In this lecture, we will discuss about G20 summit in South Africa. Why news? The 2025 G20 summit is the 20th meeting of the G20 heads of state and government, held on November 22-23, 2025 in Johannesburg, South Africa. 2025 G20 समिट जो हो रहा है वो साउथ अफ्रीका के जोहान्सबर्ग सिटी के अंदर हो रहा है। G20 का ये 20th मीटिंग है। This is the first G20 summit to be hosted on the African continent, which focused heavily on the priorities of the global South. ये G20 का फर्स्ट समिट है जो कि अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में होस्ट किया जा रहा है और यही वजह है कि ग्लोबल साउथ से रिलेटेड इश्यूज को प्रायोरिटी दी जा रही है इस समिट के अंदर। However, the summit was boycotted by the US, which did not send a leader to the event due to tense ties with the South Africa. यूएस के द्वारा इस समिट का बॉयकॉट किया गया है बिकॉज साउथ अफ्रीका के साथ यूएस के रिलेशंस बैलेंस नहीं चल रहे हैं। की डिटेल ऑफ 2025 G20 समिट। G20 समिट 2025 के की डिटेल क्या है? होस्ट कंट्री एंड सिटी साउथ अफ्रीका जोहान्सबर्ग। थीम मोटो सॉलिडरिटी इक्वालिटी एंड सस्टेनेबिलिटी। सिग्निफिकेंट, it is the first G20 summit hosted by an African nation after the African Union became the permanent member during the 2023 न्यू दिल्ली समिट। अफ्रीकन यूनियन 2023 का जो न्यू दिल्ली में G20 समिट हुआ था उस टाइम के ड्यूरिंग परमानेंट मेंबर बना था और उसके बाद G20 का ये समिट फर्स्ट समिट है जो अफ्रीकन नेशन के अंदर हेल्ड किया गया है। It also concluded an unprecedented G20 troika of three consecutive Global South countries as president: India 2023, Brazil 2024, South Africa 2025, offering a sustained opportunity to advance developing country priorities. लास्ट 3 ईयर से कंटिन्यू G20 का जो प्रेसिडेंसी रहा है वो ग्लोबल साउथ के कंट्रीज के पास ही रहा है। सच है, इंडिया का 2023 में प्रेसिडेंसी रहा, ब्राजील 2024, साउथ अफ्रीका 2025। G20 ट्रोएगा फॉर 2025, ब्राजील पास्ट, साउथ अफ्रीका करंट एंड यूनाइटेड स्टेट्स कमिंग इनकमिंग 2026। प्रेजेंट में जो G20 समिट हेल्ड किया गया है, प्रेसिडेंसी किया गया है, वो साउथ अफ्रीका के द्वारा किया गया है, इससे पहले ब्राज़ील के द्वारा, और नेक्स्ट ईयर यूनाइटेड स्टेट्स में इसका प्रेसिडेंसी या फिर समिट होगा। ये पूरा जो सिस्टम होता है, पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर का जो प्रेसिडेंसी जिन कंट्रीज के पास होगा, ये पूरा प्रोसेस को हम ट्रोइका के नाम से जानते हैं। मेजर एजेंडा, प्रायोरिटीज एंड आउटकम। G20 के मेजर एजेंडा इस ईयर क्या रहे हैं और क्या-क्या एजेंडेस को प्रायोरिटी दी गई है, उसके क्या-क्या आउटकम्स रहे हैं। The Johannesburg Declaration included a 122-point declaration focused on advancing global equity, multilateral reform, and sustainable development. 122 पॉइंट का जो डिक्लेरेशन रहा है G20 2025 का, मेरे 3 एरियाज में फोकस रहा है। ग्लोबल इक्विटी को एडवांस करना, मल्टीलैटरल रिफॉर्म पर फोकस करना, सस्टेनेबल डेवलपमेंट पर फोकस करना। की एरियाज ऑफ डिस्कशन क्या-क्या रहे हैं? एड्रेसिंग फूड सिक्योरिटी एंड सपोर्टिंग स्मॉल होल्डर फार्मर्स, improving debt relief mechanism and increasing transparency for low income countries, scaling of climate finance and promoting a just energy transition, reforming international financial institutions to better represent the global south, and promoting inclusive industrialization and a critical mineral value chain within Africa. The declaration also called for ceasefire in conflict zone। ये कुछ पॉइंट रहे हैं जिन पर important discussions किए गए हैं। Previous, current and upcoming G20 summits। Current G20 summit 2025। The G20 Leaders Summit is taking place on November 20 to 23, 2025 in Johannesburg, South Africa. South Africa holds the G20 presidency from December 1, 2024 to November 30, 2025. Previous 2024 summit. The G20 summit was held on November 18, 19, 2024 in Rio de Janeiro, Brazil. Upcoming G20 summit of 2026. The next G20 summit is scheduled for December 14, 15, 2026 in Miami, US. नेक्स्ट G20 समिट जो होगा वो यूएस के अंदर होगा। की इन्फॉर्मेशन अबाउट G20। G20 से रिलेटेड की इन्फॉर्मेशन क्या है?
The G20 Group of 20 is the premier forum for international economic cooperation, playing a crucial role in shaping the global architecture and governance on major international economic issues. G20 इंटरनेशनल इकोनॉमिक कोऑपरेशन के लिए एक प्रीमियर फॉर्म है जो कि ग्लोबल आर्किटेक्चर एंड गवर्नेंस को शेपिंग करने में अपना एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। स्पेशली इंटरनेशनल इकोनॉमिक इश्यूज से रिलेटेड ये एक रिलायबल आर्किटेक्चर एंड गवर्नेंस प्रोवाइड करता है। Established in 1999, membership 19 members and two regional bodies, the European Union and African Union. टोटल 19 मेंबर हैं G20 के अंदर एंड साथ ही टू रीजनल बॉडीज यूरोपियन यूनियन एंड अफ्रीकन यूनियन इसके मेंबर हैं। समिट्स समिट्स जो हेल्ड होता है इसका ईयरली होता है ऑन रोटेशन बेसिस। G20 began as a forum for finance ministers and central bank governors and was elevated to a leaders summit in 2008। स्टार्टिंग में G20 समिट्स जो हुआ करते थे उसमें ओनली फाइनेंस मिनिस्टर एंड सेंट्रल बैंक गवर्नर का ही मीटिंग हुआ करता था, बट 2008 से इसमें लीडर्स भी इंक्लूड होने लगे। सिग्निफिकेंस G20 member represent a large portion of a global economy and population functioning. The G20 lack a permanent secretariat and has an annual rotating presidency। G20 का कोई परमानेंट सेक्रेटेरिएट नहीं है एंड एनुअली रोटेटिंग बेस पर इसका प्रेसिडेंसी किया जाता है। इट्स वर्क इज स्प्लिट इनटू द फाइनेंस ट्रैक एंड द शेरपा ट्रैक। इसका जो वर्क होता है वो टू पार्ट में डिवाइड होता है, फाइनेंस ट्रैक एंड शेरपा ट्रैक। इंडिया G20 presidency of 2022-2023। India held the G20 presidency from December 1, 2022 to November 30, 2023। इंडिया ने G20 का प्रेसिडेंसी दिसंबर 1, 2022 से नवंबर 30, 2023 तक किया था, होस्टिंग द G20 समिट इन न्यू दिल्ली इन सितंबर 2023। न्यू दिल्ली में 2023 सितंबर मंथ में इंडिया ने G20 का समिट होस्ट किया था। थीम वसुधैव कुटुंबकम और वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर, ये उस टाइम का थीम था। की प्रायोरिटीज inclusive growth, accelerating sustainable development goal progress, टेक्नोलॉजिकल ट्रांसफॉर्मेशन, क्लाइमेट फाइनेंस एंड वुमेन लीड डेवलपमेंट, ये कुछ की प्रायोरिटीज रही थी इंडिया की। मेजर आउटकम्स ऑफ द न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन, इंडिया ने जो G20 का प्रेसिडेंसी किया था उसके कुछ मेजर आउटकम्स क्या क्या रहे। अफ्रीकन यूनियन परमानेंट मेंबरशिप, अफ्रीकन यूनियन को G20 का परमानेंट मेंबर बनाया गया। द लॉन्च ऑफ द ग्लोबल बायोफिल अलायंस का लॉन्च किया गया था। द प्रपोजल फॉर द इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर, इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर का जो प्रपोजल यहाँ पर इंट्रोड्यूस किया गया था वो इंडियन प्रेसिडेंसी के ड्यूरिंग ही किया गया था।